In the last lecture we are discussing about mole fraction. So I have already told you that mole fraction is defined as number of moles divided by total number of moles. Okay, so we move on to next slide. If we have a binary mixture of two components, let's say A and B, and we have to calculate the mole fraction of A and mole fraction of B, these are denoted by XA and XB. Okay, that is written here. Now the XA and XB is equal to a number of moles of A divided by number of moles of A plus B. Number of moles divided by total number of moles, and mole fraction of B is equal to number of moles of B divided by total number of moles. If solution having I component, this is I. If solution has having I component, then mole fraction is equal to Ni by summation of Ni. Means mole fraction of that component divided by total number of moles. Okay. In our solution, the mole fraction is always, if there are two components, then XA plus XB is equal to 1. And if there are more than two components, then the sum of mole fraction of all the components are 1. So if there are I component, then the sum of mole fraction of ith component is equal to 1. Okay. Next is, we have to calculate the number of moles, mole fraction of benzene in 30% mass of CCl4. 30% मास का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब 30 ग्राम बेंजीन. टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम. तो टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा? 70 ग्राम हो जाएगा. अब मोलर मास बेंजीन का 78 ग्राम होता है, 78 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? जो मास हमारे पास गिवन है उसको मैं नंबर ऑफ मोल्स से मोलर मास से डिवाइड कर देता हूँ. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 30/78. इन द केस ऑफ मोलर मास कितना है भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड 154, 70 डिवाइडेड बाय 154. अब हमें मोल फ्रैक्शन बेंजीन के निकालने हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के है भाई हमारे पास ये 0.3846 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.3846 प्लस 0.4545. विल गेट द वैल्यू 0.458, and this is the mole fraction of a solution. अगर आपके पास 30% मास दिया हुआ है तो what you have to do? 30% मास मतलब 30 ग्राम is present in 100 ग्राम of solution. इसका मतलब आपके पास solvent का weight कितना है? That is 70 ग्राम and that is carbon tetrachloride. And sir, you have to calculate the molar masses. The number of moles क्या होते हैं? जो मास हमारे पास given है that is 30 divided by molar mass. बेंजीन क्या आ गए भाई? वैसे हमारे पास 70 ग्राम हमारे पास CCl4 है, उसका मोलर मास कितना है? 154. यू नो हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मासेस? Molar mass of a molecule is equal to the sum of atomic masses of different atoms. Okay, next we know we have to calculate the molarity. So what is molarity? Molarity is so simple to understand. Molarity is number of moles present in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी. ओके, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स इन अ यूनिट लीटर. इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है भाई, ड्यू टू डिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑन द टेम्परेचर. ओके, मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज मास डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे. मोलैरिटी इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी. अदर क्वांटिटीज विच इज रिलेटेड टू मास ओनली, जिनमें सिर्फ मास है, दीज आर independent of temperature. So molarity is number of moles of solute divided by volume of solution in liter. Say for example, if we have 0.25 moles of NaOH dissolved in a liter or in 1 cubic centimeter, एक 1 decimeter cube. वो एक चीज़ का ध्यान रखना that 1 liter is equal to 1 decimeter cube. You will need that particular expression, and 1 liter is equal to 1 decimeter cube. That means 0.25 moles present in 1 liter means 0.25 moles present in 1 liter. तो उसका molarity कितना आ गया? 0.25 molar. Okay, basically molarity is the number of moles in a liter solution, 1 liter solution में. Next is you have to solve the problem. That problem is 30 gram of cobalt nitrate, NO32. You can see here 6H2O in 4.3 liter of solution. So what you have to do? पहले तुम्हें मोल्स निकालने हैं. मोल्स कैसे निकालोगे भाई? मास इन ग्राम बाय मोलर मास. मोलर मास इसका कितना है? 291 ग्राम ऑफ पर मोल. ठीक है, मोलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज 291 ग्राम.
So we divide 30 gram by 291 gram, we'll get number of moles. Number of moles आ गए. Number of moles divided by liter of solution. अगर आपके पास मिलीलीटर सॉल्यूशन गिवन है तो आप उसे लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन में है. सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले हुए हैं 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 के लिए, 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 0.5 मोलर है मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000, इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे भी. और लीटर को ml था हमारे पास, 500 ml में कितना लीटर रहेगा? आधा लीटर. आधा लीटर मतलब 0.5 लीटर, तो ये आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी. सो लीटर से डिवाइड करोगे. अगर आपके पास मिलीलीटर सॉल्यूशन गिवन है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर और मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ml इन दिस वे. सो मोलैरिटी को अगर आप सिंपल फॉर्मूला लिखोगे तो यह आएगा, जो मास गिवन है आपके पास, मोलर मास जो है मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ml में. अगर वॉल्यूम जो है वो आपके पास लीटर में गिवन है तब आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे. मिलीलीटर में गिवन है तो फॉर कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर टू लीटर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. Next is molality. Molality is number of moles present in 1 kilogram of solution. Okay. Molality is number of moles present in 1 kilogram of solution. Oh, sorry, no, 1 kilogram of solvent, not solution. एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हमने उसमें सॉल्यूशन मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोला था, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है हमने किलोग्राम में. तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इज योर व्हाट? मोलैलिटी. मोलैलिटी को आप जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम सॉल्यूशन है और उसको हमने 74.5 ग्राम या फिर 1 मोल जो है वो डिसोल्व करा है, तो इसका मतलब 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल प्रेजेंट है 1 किलोग्राम पानी में. ओके. नेक्स्ट इज दिस इज अ प्रॉब्लम. यू हैव टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 2.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाना है आपने. एक्वस मतलब वाटर में, नॉन एक्वस मतलब इन अदर सॉल्वेंट. एक्वस सॉल्यूशन आपने वाटर में बनाना है और 2.5 किलोग्राम जो है 2.5 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यूज करना है. सो हाउ कैन यू कैलकुलेट? आप मोलर मास निकालिए, उसके बाद 0.25 मोलर बनाना है अपने सॉल्यूशन को, तो आप वहां से कितना ग्राम यूरिया चाहिए वो कैलकुलेट करना है. इसको सिंपल फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो. मैंने बताया था दैट मोलैलिटी, जैसे मोलैरिटी था वैसे ही मोलैलिटी इज इक्वल टू, बाकी हम स्मॉल m से लिखते हैं भाई मोलैलिटी को, ये चीज़ ध्यान रखें. मैं इसको मोलैलिटी इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास इनटू 1000 के में जरूरत है अगर ग्राम में है, लेकिन किलोग्राम में है तो मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम. तो मास बाय मोलर मास, हमने मास निकालना है. तो आप क्या कीजिए, 0.25 को उस तरफ कीजिए, मास को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.25 को मोलर मास से, जैसा कि इसमें किया हुआ है. तो आपको 15 ग्राम यूरिया चाहिएगा 1000 ग्राम के लिए, लेकिन आपको कितने के लिए चाहिए? 2.5 मतलब 2500 ग्राम के लिए. तो उसको आप क्या करोगे 15 गुना 25 डबल ओ डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 15 कर दोगे तो आपके पास 37 ग्राम ऑफ यूरिया आ जाएगा. सिंपल आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. आपने क्या करना है 0.25 मोलर उस तरफ लेके जाना है, मल्टीप्लाई करना है किससे? मल्टीप्लाई करना है मास, मोलर मास से 60 डिवाइडेड किससे करना है? 2.5 किलोग्राम से. तो आपके पास क्या आ जाएगा? मास नीडेड आ जाएगा एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 37 ग्राम. नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सोल्युबिलिटी होती क्या है? सोल्युबिलिटी भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डिसोल्व करते हो एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इन अ सोलवेंट, उसे आप बोलते हो सोल्युबिलिटी. बाकी ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी कमी है इस डेफिनेशन में. दिस इज नॉट कंप्लीट. सोल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन अ सोलवेंट इफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट when we are dissolving there is a dissolution and condensation equilibrium is reached. So what is that? इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए कि आपने
एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर साल्ट डालना शुरू करा, वाटर आपके पास था, आप उसके अंदर साल्ट डालते रहे और सॉल्यूशन आपने बनाया। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद यू आर एडिंग सॉल्ट 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 एंड इफ यू आर एडिंग मोर सॉल्ट, तो आप उसमें और ज़्यादा साल्ट डिजोल्व नहीं कर सकते। कैसे सिचुएशन आ जाएगी? इसका मतलब जितना साल्ट आप डिजोल्व कर रहे हो उतना ही साल्ट पर्सिपिटेट आउट हो रहा है। ओके, नाउ द थिंग इज पर्सिपिटेट आउट मतलब जितना डिजोल्यूशन है, जितना डिजोल्यूशन है आपके पास उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन मतलब उतना ही आपका साल्ट बाहर आ रहा है। तो डिजोल्यूशन और कंडेंसेशन जो है वो दोनों प्रोसेस, मतलब डिजोल्यूशन मतलब डिजोल्व होना, कंडेंसेशन मतलब सॉल्यूशन से बाहर आना, ये दोनों अगर इक्विलिब्रियम में है और उस टाइम आपने मैक्सिमम सोल्यूट को डिजोल्व करा है तो उसे आप बोलते हो सोल्यूबिलिटी। और वही टाइम है जिस टाइम मैक्सिमम सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट if the dissolution and condensation process are at equilibrium. So what are the factors affecting the solubility? Nature of solvent में, और second nature of solute, temperature, third pressure, fourth and fifth is solubility of solid in a liquid. So what is nature of solute and solvent? सोल्यूट और सोलवेंट में भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइक डिसोल्व लाइक। यूनिवर्स का रूल है कि लाइक डिसोल्व लाइक मतलब पोलर सोलवेंट पोलर में डिसोल्व होगा, नॉन पोलर सोलवेंट नॉन पोलर में डिसोल्व होगा। जैसे इफ द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इज सेम, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वुड बी सेम, दैट हेल्प्स इन द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन अ सोलवेंट। पोलर सोल्यूट डिसोल्व होते हैं पोलर सोलवेंट में, NaCl और शुगर वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर सोल्यूट डिसोल्व होते हैं नॉन पोलर सोलवेंट में। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो है वो बेंजीन में डिसोल्व होते हैं, वाटर में डिसोल्व नहीं होते हैं। सो पोलर डिसोल्व लाइक polar, so like dissolve like rules is applicable in case of nature of solute and solvent. Next is saturated solution and unsaturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है भाई जिसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसोल्व नहीं हो सकता, जो मैंने अभी बताया। If the concentration of solute in the solution remains constant at a given set of temperature and pressure, आप टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं करोगे, if we add more solute it will precipitate out, मतलब वो बाहर निकल आए। No more solute can be dissolved in a solution, that solution is saturated solution. और अगर आप ज़्यादा solute डिसोल्व कर पा रहे हो तो उसे आप बोलते हो unsaturated solution. If the concentration of solute in the solution can increase at a given set of temperature and pressure, this is most important, that temperature and pressure, because the solubility can increase by increasing temperature or increasing pressure, it depends which type of reaction is that. Okay, increase the concentration of solution. अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में ये डिसोल्व होता है और कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, आप सोल्यूट डिसोल्व कर सकते हो, बट सेचुरेटेड में आप सोल्यूट डिसोल्व नहीं कर सकते मोर सोल्यूट, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन अ सोलवेंट फॉलो द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सोल्यूट सोलवेंट में इक्विलिब्रियम रहता है भाई, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल भाई ये कहता है अगर आप किसी रिएक्शन को जो इक्विलिब्रियम में है उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो हमेशा वो फोर्स को ओवरकम करने के लिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है या फिर फॉरवर्ड में जाता है या फिर उसके रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। जैसे अगर हमने सॉल्यूशन बनाया और उसमें से हीट निकल रही है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जैसे पहले मैं एंडोथर्मिक बात कर देता हूँ। अगर आपने सॉल्यूशन बनाया और रिएक्शन सॉल्यूशन जो है वो ठंडा हो रहा है, आपने पानी में कुछ मिलाया जिससे पानी ठंडा हो रहा है, सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिएक्शन जो है ना भाई टेम्परेचर बढ़ाने से और सोल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी, ठीक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पहले से हीट हो गया, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड दैट बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स दैट सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट विल डिक्रीजेस। दो चीज़ें हैं, एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी कम होगी, अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ओके, सिंपल है भैया, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट को यूज करते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ठीक है। हीट रिलीज होती है तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रिवर्स इफेक्ट क्या होगा? सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हीट हम यूज करते हैं और अगर आप उसे और हीट दे दोगे तो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. सॉलिड और लिक्विड पे भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होता है, वेरी माइन्यूट इफेक्ट्स होते हैं विच आर नॉट सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. अब सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, इसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आप देखिए. जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर जितने भी ओशियंस हैं या फिर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, उनमें सोल्यूबल ऑक्सीजन होता है भाई. ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वाटर में, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कर पाते हैं. ओके, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट पे सोल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. सेम चीज़ है भाई. Solubility of a gas in a liquid are also somewhat affected by nature of solute and solvent. Oxygen dissolve only a small content in water, but HCl is highly soluble because the polar nature. Same things like dissolve like, that means if a polar solvent is there, that means it is dissolved by polar solute, and if a non-polar solvent is there, non-polar solute. Effect of pressure. Solubility of a gas in a liquid is highly affected by pressure, and this is the most important topic. As the pressure of gas above the surface of liquid increases, if we say that we have a gas in a chamber, ठीक है, आपके पास फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, नीचे आपने लिक्विड रखा हुआ है, ऊपर गैस है, तो आप उस फ्रिक्शनलेस पिस्टन से प्रेशर बढ़ा रहे हो तो गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो पास पास आ रहे हैं और वो लिक्विड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स अगर आप प्रेशर ओवर द गैस ऑफ सरफेस बढ़ाते हो, दैट मीन्स द सोल्युबिलिटी है आपकी गैस की इन लिक्विड दैट हैज टू बी इंक्रीज. सो सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid is highly affected by temperature and pressure. As the pressure over the gas of surface liquid increases, अगर above surface से जो gas है उसके ऊपर आपने pressure लगाया तो solubility of a gas in a liquid increase with increasing in the pressure. So quantitative relationship इस situation के लिए जो थी that is known as Henry law. Henry law क्या कहता है? The solubility of a gas in a liquid increase with increase in pressure. Okay, so at constant temperature, this is most important, temperature आपको change नहीं करना है. The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of a gas present above surface of the liquid or solution. What is partial pressure? If we have a mixture of gases, then the individual pressure is known as partial pressure. Okay. If we consider the mole fraction of a gas in a solution to measure its solubility, it can be said that mole fraction of a gas in a liquid is proportional to partial pressure above the liquid and solution. Mathematically, it can be written as that partial pressure of a gas is directly proportional to mole fraction of gases. The partial pressure of a gas in vapor phase, दो फेज होंगे भाई उसमें, एक वेपर फेज होगा एक लिक्विड फेज होगा, एंड दैट वेपर फेज इज गैसियस फेज, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. जितने गैस के मोल फ्रैक्शन है. सो पार्शियल प्रेशर अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं तो के एच आएगा, और के एच क्या है अभी हमारे पास, दैट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट. और हेनरी लॉ का हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी यूजेस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. So what are important points about Henry law? Different gases की different Henry law constant value रहेगी भी same temperature पे. एक चीज़ का ध्यान रखना, nature of temperature पे आपका जो KH है वो depend करता है. Higher the value of KH at a given pressure, lower is the solubility. KH की वैल्यू, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, KH की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो solubility जो है गैस की लिक्विड में वो कम रहेगी. अगर KH of a वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर गैस इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू बढ़ती है. प्रेशर को बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी जो KH की वैल्यू एट ए गिवन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो सोल्युबिलिटी कम है. इट इंडिकेट्स दैट सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप बात करते हैं सोल्युबिलिटी, जो हमने अभी बात करी थी सॉलिड और लिक्विड की, वो जो है वो डिपेंड करती है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, बट सोल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑलवेज डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इसको आप ऐसे फर्ज कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी लिक्विड में किसी गैस को सोल्यूबल कराया, आप उसे हीट कर रहे हो तो जो गैस है वो एस्केप आउट हो जाएगी. दैट मीन्स इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल डिक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस. नेक्स्ट इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. Effect of temperature is
बेसिकली अभी हमने डिस्कस करा, अगर आप टेम्परेचर, दिस इज ऑलवेज if we know that the process of liquid or gas dissolve in a liquid is always exothermic process, and if we increase the temperature, then the solubility of a gas in a liquid is always decreases. Okay, if we increase the temperature, the solubility of a gas in a liquid is always decreases. Next is, what are applications of vanilla? This is the most important topic that we have to discuss. Applications पूछी जाती है भाई हमेशा. आपने देखा होगा, very first application is sealing of soft drink bottle at increased solubility of carbon dioxide है भाई ये CO2 gas in soft drink and soda bottle. Now the important thing is, अगर आप सोडा वाटर बोतल है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनको सेक करके ओपन करते हो, देन यू फाइंड इट आउट दैट जितना भी अंदर लिक्विड है वो बाहर आ जाता है. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज एट हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक बोतल. हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल करे जाते हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी गैस के लिक्विड में बढ़ जाती है. जिस टाइम हम गैस बोतल को ओपन करते हैं, उस टाइम आपके पास जो गैस है, gas at higher pressure रहते हैं inside the soft drink, but at outside or in atmosphere it is in low pressure. So gas एकदम बाहर आने की कोशिश करते हैं from high pressure to low pressure, इसीलिए एकदम जो soft drink है वो बाहर आ जाती है. Now what is the second important point? Second important point बहुत बार पूछा जाता है कि स्कूबा डाइवर्स जो है, जो सिलेंडर यूज करते हैं. Okay, the cylinder used by scuba divers is not only have oxygen, it's also have 11.7% of helium, and it's also have 56.2% of nitrogen. What is the reason behind that? Scuba divers भी बहुत नीचे डेप्थ में जाते हैं समुद्रों में. ठीक है, स्कूबा डाइवर्स जिस टाइम नीचे जाते हैं, as they go down and down, प्रेशर बढ़ता जाता है. अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो उनकी बॉडी में जो गैसेस हैं उसका प्रेशर बढ़ रहा है, और गैसेस का प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वे बॉडी जो आपके पास बॉडी में ब्लड है उसमें डिसॉल्विंग पावर जो है वो बढ़ रही है. ओके, नाउ द प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ, देयरफॉर द डाइवर अप्रोचेस द बॉटम एज द प्रेशर इंक्रीजेस. विद इंक्रीज इन प्रेशर मोर नाइट्रोजन गेट डिसोल्व. जितना ज़्यादा नाइट्रोजन डिसोल्व होता जाएगा भाई, बट ऐसे ही वो ऊपर आता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. अब प्रेशर कम होने से अब जो नाइट्रोजन डिसोल्व हो रही थी उसकी बॉडी टिश्यूज में वो कम होती जाती है, तो बबल्स बन जाते हैं नाइट्रोजन के, जिसकी वजह से अगर बबल्स मतलब एकदम नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी हमारी बॉडी फ्लूइड्स से, तो बबल्स बन जाएंगे, और बबल्स की वजह से बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं बॉडी में ऑफ डाइवर्स, एंड दिस कैन कोज टू थ्रेट ऑफ द लाइफ. फॉर यूटिलाइजिंग द थिंग, अब टू प्रोटेक्ट द डाइवर देयर हैज टू बी सम कंटेंट ऑफ हीलियम एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर अकेला ऑक्सीजन प्रेजेंट है then it would not be possible. That's why we are mixing the oxygen present in the cylinder of a scuba diver with 11.7% of helium, 56.2% of nitrogen, 32.1% of oxygen for removing the bubbles. Okay, next is also a very important point. As we know that if we goes up at the mountain, the pressure of oxygen is decreasing. Okay, the pressure of oxygen is decreasing at high heights, and if the pressure of oxygen is decreasing, then the person who is at higher heights are feeling like that there is low oxygen in their blood. That's why they are feeling like tired, and this kind of a situation in which there is less oxygen available for blood, and if there is less oxygen available for a person to breathe, this type of situation is known as anoxia. Okay, so due to low partial pressure of oxygen at higher altitude, there may be a problem to the person which is known as anoxia. Okay, next things we will study in next class.